Hello and welcome back to the channel Fake Safari. I hope you guys are doing good and studying well. Today I'm going to discuss the uniform circular motion. In the previous video lesson, I have given you the intro about what is circular motion and how it happens and what are the conditions for the circular motion. आज हम बात करेंगे इन स्पेसिफिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपके सिलेबस का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है, हम उसी पे चर्चा करेंगे. ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो बड़ा सिंपल सी बात है. इफ लेट्स सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, इतना अपने को पता है, इट विल हैव टू काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच आर डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस सेशन. तो लेट अस सपोज इसके पास कुछ वेलोसिटी v है, दिस इज योर सेंटर एंड लेट्स सपोज दिस इज योर रेडियस r. It will have the velocity, acceleration that would be called as a normal or a radial, जो भी आपकी मर्जी है, या फिर a centripetal, आप जो भी उसको बोलना चाहते हैं बोलो. In this direction, we'll be having a tangential acceleration. Now listen to me carefully. If I have an acceleration in the direction of velocity, velocity हमेशा tangential होता है in the circular path. आप यहाँ पे देखो velocity tangential, यहाँ देखो वो tangential ही रहेगा. Tangential means radius के perpendicular. That's called tangential over here. Okay, now be it here, be it there, or be it anywhere, that is going to be tangential. If I have a certain amount of acceleration in this direction of this velocity, then the velocity would increase, and if the acceleration is opposite to that, the velocity would decrease. And I'm talking about the magnitude of the velocity, which is speed. अगर acceleration इस तरफ है तो इसका speed increase कर रहा होगा, that would keep on changing. But अपने को क्या चाहिए? Uniform circular motion. In short, we call this as a UCM. Uniform में क्या होता है बच्चों? The speed should not change. That should remain constant. हाँ, उसका velocity change हो सकता है because of the change in direction, but अपने को वो speed same होना चाहिए. That clearly means कि this tangential acceleration should be zero. पहला point जो आपको समझ में आना चाहिए कि in the uniform circular motion, a tangential should be zero. सिर्फ और सिर्फ एक ही acceleration होना चाहिए. That is going to be the normal acceleration. Apart from that, we should not have the tangential direction. Acceleration. It means the net acceleration in this case, in the UCM, net acceleration is going to be equals to your radial acceleration. ये अपने को बात clear हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. And the value of the radial acceleration, radial बोलो, normal बोलो, centripetal बोलो, ये आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है. All good. That is going to be given as v square upon r. So the necessary condition for the circular motion, uniform circular motion in particular, that at has to be zero. अगर ये जीरो हो गया तो आपका हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा that is given as v square upon r. आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा ही होगा. I would come to that later on. तो उस केस में हम बात करते हैं mv square upon r. तो एक सिंपल सा क्लैरिटी हो गया. Now sir, one more thing. If I have the acceleration, it means the velocity must change. हाँ, change होगा, definitely होगा, but not in terms of the speed, but in terms of direction. इस पॉइंट पे देख लो, velocity का डायरेक्शन इस तरफ है, which was different over here. इतना बात तो समझ में आ गया. अच्छा, let me tell you something more about this particular point. इस पे थोड़ा और हम चर्चा करेंगे, और थोड़ा चर्चा करते हैं. इसको हटा देते हैं, इसको I'm writing it here. ठीक है जी. अच्छा, if I want to locate, let's suppose at this particular point I have the particle moving in the circular path, और हम इस पॉइंट पे चर्चा करना चाहते हैं कि भैया मेरे को लोकेट करो. Locate the particles position. Locate the position of point P. पॉइंट P है कहाँ? मेरे को पार्टिकल का चाहिए. Where is the particle? Let's suppose at any time t, at time p is equals to t, पार्टिकल अपना यहाँ पे था, मेरे को उसको लोकेट करना है. ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग. लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा. हम इसमें भी चर्चा करेंगे अभी, बट अभी के लिए समझ लो कि दिस इज जस्ट थीटा. कोई एंगल अपना इतना बन गया है. नाउ टू लोकेट दिस पार्टिकल्स पोजीशन, व्हाट डू वी नीड? अपने को चाहिए दिस कोऑर्डिनेट, दिस लेंथ चाहिए, एंड दिस लेंथ आई नीड टू लोकेट द पार्टिकल हैविंग रेडियस बीइंग r. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? दिस इज गोना बी व्हाट? r sin थीटा. आई बिलीव आपको ये सब बातें आपको ऑलरेडी आती होगी. दिस इज गोना बी हाउ मच? r cos of theta. It means this particle position P, इसको हम अगर पोजीशन वेक्टर R मान लेते हैं, origin को at center मान लेते हैं, then this should be given as what? R cos of theta I cap, sin theta, my bad, R sin of theta I cap plus आपका क्या हो जाएगा? R cos of theta J cap.
Now, to locate this particular position of the point, what I need the radius, I need the theta. All good? मेरे को ये दो बातें यहाँ पे चाहिए होगा. तो सर ये कितना आसान हो गया ना जी, ये कितना आपका आसान हो गया, क्योंकि इस केस में क्या है, इस केस में r इज कांस्टेंट, जो रेडियस आपका वो कांस्टेंट है. आई कैन इजिली लोकेट दिस पॉइंट, इसको हम चुपचाप लोकेट कर सकते हैं. अगर एंगुलर फॉर्म में देखें, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, लिख लो, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन. सेम को सेंटर ऑफ मास मत बोलना, दैट इज अ सर्कुलर मोशन. हम लोग पोलर फॉर्म और पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो भी आप बोल सकते हो. सर अगर इफ आई वुड नॉट हैव गॉन विद दिस थीटा, देन मेरे को क्या चाहिए होता, इस पॉइंट का x एंड y कोऑर्डिनेट चाहिए होता है. आई वुड हैव रिक्वायर्ड, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखते हैं, व्हाट हैव सीन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आई वुड हैव रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स x एंड y. तो मेरे को दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं टू लोकेट द पर्टिकुलर पॉइंट. बट व्हेन आई एम डीलिंग विद दिस सिचुएशंस इन द पोलर फॉर्म और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हाटएवर यू वांट टू टर्म इट एज, देन आई वुड जस्ट नीड वन वेरिएबल व्हिच इज थीटा. मेरे को सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए थीटा, बिकॉज़ r फॉर अ पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन विल बी कांस्टेंट. सो तो पोलर फॉर्म में वी नीड वन वेरिएबल, just one variable to locate the point, to locate the point. now बच्चों वो one variable है क्या, that is a theta. अब थोड़ा थीटा के बारे में जानते हैं कि थीटा होता क्या है. देखो थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा जो होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा जगह तो है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा इज द, इसको बोलते हैं, इधर लिख लेते हैं, थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, theta is called angular displacement. Now the word displacement has been used. It means theta क्या होना चाहिए, it should be a vector quantity. ये हमारा vector quantity होता है. But एक बात आपको बहुत ही clear होना चाहिए, थोड़ा सा अजीब सा है, it sounds weird but you need to understand. Small theta would be vector. Small theta is vector quantity. Is vector. Theta vector नहीं होगा, that is a scalar quantity. But छोटा सा angle लेंगे, if I take a small angle, mark it. If I take a small angle, for small angle is vector. स्मॉल एंगल इज वेक्टर, और अगर बड़ा एंगल लेते हैं तो वेक्टर नहीं होता है. ये थोड़ा सा वियर्ड है बट अपने को जानना चाहिए. अब देखो थीटा, क्योंकि वेक्टर तो थीटा का डायरेक्शन भी होना चाहिए. इफ इट इज अ वेक्टर इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन. अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम इसी फिगर को यूज करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं. थीटा इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, एरो दिखा रखा मैंने, इस तरफ जा रहा, राइट. पुट योर हैंड्स लाइक दिस, कर्ल इट, योर थंब वुड बी शोइंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा. वो बाहर की ओर होगा ना, द थीटा इज गोना बी, थीटा इसको मत समझना प्लीज, डू नॉट अंडरस्टैंड, टेक दैट एज अ थीटा. इसको भी डायरेक्शन ऑफ थीटा मत लेना, because थीटा एंटी क्लॉक है या क्लॉक है. दैट इज जस्ट अ नोटेशन व्हिच वी यूज टू अंडरस्टैंड whether we are moving the axis is out or axis is in. clockwise anti clockwise direction नहीं होता बच्चों, that is just a notation we follow to decide the direction of theta, because theta being a vector quantity इसका कुछ डायरेक्शन होना चाहिए. आप सिंपल से बात समझो, थीटा ऐसे है, put your four fingers, all these four fingers, not this particular four fingers, all the four fingers, curl your fingers towards the direction in which it is moving. So let us suppose this is the point 1, this is the point 2. तो point 1 से point 2 जाने में ऐसे मूव किया तो thumb is pointing outward, तो बाहर की ओर होगा आपका डायरेक्शन ऑफ दिस थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और ये जो बाहर की ओर होगा क्योंकि वो एक्सिस होगा. अगर सर्कल को हम ऐसे देख लेते हैं, इफ आई लुक एट द सर्कल साइड व्यू देखते हैं, देन एक्सिस इज गोना बी पासिंग थ्रू हियर, है ना, एक्सिस यहां से पास कर रहा होगा. एंड लेट्स सपोज बॉडी का मूवमेंट ऐसा कुछ है, ये थीटा आपका है, देन यू कैन सी दैट पॉइंट इस तरफ आ रहा होगा ना, हम लोग साइड से देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे सर्कल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और पिंग बाहर एक्सिस. तो थीटा क्या हो गया, वो एक्सिस के पैरेलल होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, जिसको हम लोग एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं. दिस इज द एक्सियल वेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए. व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, कुड बी आउटवर्ड और कुड बी इनवर्ड. तो हमेशा एक लिख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिस. डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझ में आनी चाहिए. डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस, ये हमेशा एक्सिस के पैरेलल होता है. अब इसको लिख लो, डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस. अच्छा एक बात और, यहाँ पे स्पेस थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, है ना, इधर ही निपटा लेते हैं इसको ना, इसको इधर ही निपटा लेते हैं. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट. हम साफ सुथरा कर लेते हैं. तो देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विथ यू इज थीटा ओमेगा, इनका हम लोग चर्चा करेंगे. तो अपना एक सर्कल हो गया, दिस इज योर सर्कल,
ये हमने सर्कल, आइए बंद हो जा, 1 सेकेंड, इस मार्कर ने मेरे से पंगा लिया, ठीक है। लेट अस सपोज कि दिस इज द इनिशियल पोजीशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 और किसी टाइम पे बॉडी इज हियर, है ना, एट एन एंगल ऑफ थीटा। लेट अस से दैट इसने कुछ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा मान लो, यहाँ पे d थीटा, तो करस्पॉन्डिंग आर्क मूवमेंट will be called as small displacement. That corresponding arc moment will be called as a small displacement. और आपको पता ही है आर्क जो हम निकालते हैं फॉर स्मॉल एंगल क्या होता है आपका, जो स्मॉल एंगल हो गया वो इनटू द रेडियस ऑफ द सर्कल होता है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो जो स्मॉल आर्क है व्हिच इज ds could be written as what, एंगल d थीटा क्रॉस रेडियस कितना आपका है r, है ना। हम इस पे वापस आएंगे, आई वुड बी बैक ऑन दिस, इस पे हम वापस आते हैं, बट थोड़ा और आपको समझाते हैं इसका कुछ और पैरामीटर्स ऑफ सर्कल। आई एम गोना कम बैक टू दिस वन, बट फॉर दैट लिखो भी फटाफट सर्कुलर पैरामीटर्स। लाइक हमारे पास लीनियर पैरामीटर था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, लीनियर पैरामीटर्स था। लाइकवाइज वी कैन आल्सो हैव द सर्कुलर पैरामीटर। तो पहला सर्कुलर पैरामीटर्स में व्हाट आर द कोरोलरी व्हिच वी हैव इज ds एंड d थीटा। d थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, d थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो लीनियर काउंटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ऑल गुड। नाउ लीनियर काउंटर पार्ट में क्या था अपने पास, पहला हो गया, आप लीनियर पैरामीटर्स लिख लो, लीनियर पैरामीटर्स and corresponding to this we can have some angular parameters. So first thing we have already discussed, linear में हो गया, we have ds displacement, corresponding to this we should be having d theta, हमारे पास a मिल गया, अच्छी बात है। अब ना आप इसको d थीटा को डिफरेंशिएट कर दो, चेंज ओमेगा वेलोसिटी, है ना, कुछ ऐसा टर्म हमारे पास आएगा, क्योंकि सिंस दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन इट मस्ट गो विद सर्टेन sort of speed, certain sort of velocity, क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, वी कैन टर्म इट एज अ वेलोसिटी। हमारे पास लीनियर क्या होता है बच्चों, लीनियर वेलोसिटी v होता है, यहां पर क्या होता है ओमेगा व्हिच इज गिवन एज d थीटा अपॉन dt। चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ओमेगा। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अच्छा हाँ, एक बात और बच्चों, ये जो एंगल्स लेते हैं ना, इट शुड बी इन द रेडियन, ये चीज हमेशा इंसान भूल जाता है, दैट शुड बी इन रेडियन। ओमेगा का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। अच्छा, सिंस इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी तो इसका भी डायरेक्शन होना चाहिए। अच्छा याद करो, आप लोग याद करो, जब हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन करते थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो लेट्स सपोज वी हैव द बॉडी व्हिच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो it used to cover a certain distance, certain displacement, and that always has been in the direction of the velocity. So let's suppose the body is coming over here. Let us assume it's moving with a uniform velocity. Then the displacement, my dear guys, that was always in the direction of velocity. हमेशा displacement का direction velocity के direction में ही होता है। या तो हो सकता है कि if velocity is decreasing, the displacement rate would be decreased slower. अगर velocity is increasing under certain sort of acceleration, displacement का जो rate है वो तेजी से बढ़ेगा, बट होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। लाइकवाइज ये जो हमारा सर्कुलर पैरामीटर्स है वो इतने भी बदमाश नहीं है, इट फॉलोज द लॉट ऑफ रूल्स ऑफ द लीनियर। तो पहला रूल क्या हो गया कि इसका जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, तो लाइकवाइज ओमेगा का डायरेक्शन भी इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। मतलब कि द बॉडी इज मूविंग दिस एंटी क्लॉकवाइज, ओके, आई एम सेइंग द बॉडी इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आउटसाइड द सर्कल, इस एक्सिस के, है ना, अलोंग है। ओमेगा शुड आल्सो बी आउटसाइड द सर्कल। तो पहला लिख लो ओमेगा, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इट इज आल्सो द एक्सियल वेक्टर, ये भी आपका एक्सियल वेक्टर ही है, एंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अलोंग d थीटा। आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब आपको दिमाग में होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आर नॉट द डायरेक्शन ऑफ द थीटा और ओमेगा, दैट इज जस्ट नोटेशन व्हिच वी फॉलो, दैट शोज यू इन व्हिच डायरेक्शन द बॉडी इज मूविंग, उसके डायरेक्शन को दिखाता है कि नोटेशन है, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। इट इज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन ऑफ थीटा और ओमेगा। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके इफ यू वांट आप लिख लो अपने नोटबुक में, जो आप नोट्स बनाते हो, आई एम श्योर यू गाइस आर मेकिंग नोट्स, राइट, आप बना रहे हो ना, जस्ट डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन कि हाँ वीडियो जब भी मन करेगा खोल के देख लेंगे, वीडियो का कुछ में भी कभी खत्म हो जाए तो
कुछ भी हो जाए, इंटरनेट नहीं हो, करंट नहीं हो, आपको चाहिए होगा उस टाइम पे, तो व्हाट यू गोना डू, शुड डू मेक अ नोट्स। वो आपको बहुत ही फायदा करता है। देखो नोट्स मेकिंग इज अ गुड हैबिट, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, इट्स अ वेरी गुड हैबिट ऑफ मेकिंग द नोट्स। सो प्लीज डू मेक द नोट्स। तो अपने कितना पता चल गया कि ओमेगा और थीटा एक्चुअल वेक्टर है और उसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है। थर्ड हमारा क्या होता था, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन होता था। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट हमारे पास यहां भी विल हैव सम एंगुलर पैरामीटर्स। अब मेरी बात समझो, अगर हमारा जो डी थीटा अपॉन डी टी है, इफ इट इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, इट मींस द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। बट अगर इफ दिस इज चेंजिंग, ये जो चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट वैरीज, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इट मींस ओमेगा का वैल्यू भी चेंज हो रहा होगा, राइट। इट मींस वी मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन। तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। नाउ अल्फा का डायरेक्शन could be along the change in omega or could be opposite, क्योंकि if you remember the linear motion, acceleration could have been in this direction और acceleration could have been in this direction also। उसको हम लोग बोलते थे deceleration और retardation। तो यहाँ पे भी वही केस है, ये अपने आप को कुछ ज्यादा अलग नहीं करता है। So alpha and omega, if they are in same direction, then omega would be increasing, and if alpha and omega are in the opposite direction, then the omega would be decreasing। आप इस चीज को याद रखना, कोई मुश्किल बात तो है नहीं, हम उसको बाद में भी चर्चा कर लेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, इनवर्ड और आउटवर्ड होता है, और अल्फा जो अपना है वो डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो बेसिकली इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, या तो इन द प्लेन या आउट द प्लेन। अगर लूप ऐसा है तो इस साइड या इस साइड हो सकता है, और तो कुछ इसमें है नहीं, दिक्कत की बात है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट, आज हम लोग बहुत सारे चीज करने वाले हैं, तो इसको रहने दो, मैं इसको हटाता हूं। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल, डोंट यू वरी। सारी कुछ मैं चर्चा करूंगा। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूं क्योंकि वीडियो में एक ऑप्शन है, एक स्लो डाउन, एक इंक्रीज, आप ये सारे आपके हाथ में है ना। एनीवेज तो थोड़ा हम और इसमें चर्चा फटाफट कर लेते हैं, ठीक है जी, ऑल गुड। नाउ जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें समझते हैं कि भैया ठीक है, दिस इज द वेक्टर, दिस ऑल्सो इज द वेक्टर, दोनों वेक्टर है, एंड ds इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर। दिख रहा है ना, ds जो बच्चों है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट इफ आई राइट a क्रॉस b एंड इफ आई राइट b क्रॉस a, दे आर नॉट सेम, बिल्कुल भी सेम नहीं, अपने को पता है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर नॉट द सेम थिंग। तो एक बात तो सिंपल है कि सर व्हेन आई राइट ds as a cross product of d theta and r, it could be written as d theta cross r, or it could also be written as ds is equals to r cross d theta। हम दोनों लिख सकते हैं। तो करेक्ट कौन सा, which one is the correct one, ये अपने को पता होना चाहिए। सही, ये अपने को पता होना चाहिए कि इन दोनों में करेक्ट कौन सा है। समझ लेते हैं इसको ना, आप इस डायग्राम से देख लो, पता है ना कि हाउ टू फाइंड a क्रॉस b। फिर से बोल दूं एक बार आपको, अगर सपोज कि एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, and I'm supposed to find a cross b, let us suppose a vector c is a cross b, how do we do that? अपने हाथ को in the direction of a रखो, b की तरफ कर्ल कर दो, and you can see that if you do that your thumb should be pointing outward, thumb आपका बाहर की ओर होगा। तो this is going to be the direction of vector c, जो कि बाहर की ओर होगा। इस पे हमने बहुत चर्चा कर रखी है ऑलरेडी। Now look at this one, d theta cross dr, d theta का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, डी थीटा बाहर की ओर है, डी थीटा इज आउटवर्ड, तो डी थीटा बाहर की ओर है, क्रॉस आर, आर इस तरफ आपका है, दिस इज योर आर वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर। ध्यान से सुनना बच्चों इस बात को, डी थीटा जो है, इधर लिखता हूं, डी थीटा इज आउटसाइड द प्लेन, बाहर की ओर, ठीक है। आर क्या आपका है, आर इज अलोंग दिस, ये आपका आर वेक्टर है। सो डी थीटा क्रॉस आर, बाहर की ओर, उंगली को ऑल द फोर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर, टिक 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 है ना। तो डी थीटा बाहर की ओर है, आर ऐसे अंदर की ओर है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा ना। ये आपको जो आपका रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ दिखेगा। रिजल्टेंट क्या है, ds। हाँ बिल्कुल सही सर, ये तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप, है ना, क्योंकि ds का डायरेक्शन क्या है, देखो यहां से यहां गया, तो ds का डायरेक्शन इस तरफ मान के चलते हम लोग है एक्चुअली, है ना। तो आपको दिख रहा होगा आर डी थीटा बाहर की ओर, आर कर्ल योर फिंगर्स, दिस इज गोना बी द डायरेक्शन ऑफ ds, है ना। आपको जो ds का डायरेक्शन है ऐसे आ रहा है, क्या वो इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। अच्छा सर इसको भी देख लेते हैं,
दिस इज आर क्रॉस डी थीटा, आपका आर इज लाइक दिस इज आर वेक्टर और डी थीटा बाहर की ओर है। नाउ आई वांट टू फाइंड आर क्रॉस, तो अपने हाथ को इस तरफ रखो लाइक दिस, ऐसे रखोगे तो भी आपकी मर्जी, बट क्योंकि डीएस बाहर की ओर है आपको हाथ ऐसे रखना ही होगा। नाउ कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स डी थीटा, बाहर की ओर ऐसे, तो आपका जो डीएस हो जाएगा दैट शुड बी दिस वे, दिस इज गोना बी योर डीएस। क्या डीएस ऐसे जा रहा है? इज इट इन दिस डायरेक्शन? ना सर ना, इट मींस ये तो गलत है भैया, दिस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज द करेक्ट वन, ये आपका सही है। So when you write ds is equals to d theta times r, that's a correct way, but हम लोग बहुत बारी लिखते हैं s is equals to r d theta, वो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में होता है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ द वेक्टर। वेक्टर्स के टर्म्स में आपको क्या लिखना है? ऐसे लिखना है। And this is one thing which I wanted to discuss with all of you, है ना। So the finally what we have got is बच्चों is ds is equals to d theta cross r। अब क्या है, पहला रिलेशन तो मेरे को मिल रखा है, लेट मी डिफरेंशिएट बोथ द साइड, तो क्या मिल जाएगा? If I differentiate both the side, ds upon dt should be equals to d theta upon dt, और r is constant, तो उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। So let's suppose r as it is, ds by dt is what? v, ये आपका लीनियर वेलोसिटी हो गया, और दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा लिख दो, और ये आपका हो गया r। दूसरा रिलेशन विच वी हैव गॉट इज v is equals to ओमेगा क्रॉस r, v is equals to ओमेगा क्रॉस r। एक स्क्रीन में आ रहा है ना, Can I just use a little bit down? हाँ, now इसको भी differentiate कर दो one more time, you should be getting linear acceleration a is equals to omega, क्या देगा? d omega by dt is alpha, we know that right? Alpha is equals to angular acceleration is d omega upon dt, so this is going to be how much? Alpha cross r। देख रहे हो अपने को three relations I have got three relations, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो पहला फटाफट हम लिखेंगे, हम लोग रिलेशन को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो ब्लैक से लिख देते हैं। सो वी कैन हैव व्हाट? ds इज इक्वल्स टू, मैं आई एम राइटिंग इट फॉर मल्टीपल टाइम्स ताकि आपको मेरे साथ अभी के अभी याद हो जाए, यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ गो होम एंड बैक एंड रिवाइज। ds इज इक्वल टू d थीटा अपॉन टाइम्स क्रॉस dr, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, एंड थर्ड वन इज योर एक्सेलरेशन, दैट्स गोना बी अल्फा क्रॉस r। ये आपको याद होना चाहिए, नो विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, ये आपको पूरे के पूरे याद होना चाहिए। बट अगर हम चाहते हैं कि ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, उसको भी लिख लें इन मैग्नीट्यूड, तो I'm going to follow the normal convention that we have been using so far, ताकि आपको दोबारा से नए सिरे से याद करने की जरूरत नहीं पड़े, जो आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो उसी में कंटिन्यू करते हैं। आइडियली आई शुड हैव रिटन s is equals to थीटा r, you know, बट हम लोग फॉलो क्या करते हैं, what we do is r थीटा। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड नंबर वन s is equals to r theta, आप इसको ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कोई फर्क नहीं पड़ता, आप a into b और b into a लिख लो, ठीक है। v is equals to r ओमेगा, ये हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है याद करने का, सबने ऐसे याद कर रखा है, r अल्फा, है ना, मैंने भी ऐसे याद किया था बचपन में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि सर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ठीक है, अच्छी बात है, s is equals to r theta, बट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर s क्रॉस थीटा नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट थीटा क्रॉस s। आप इस बात को अपने मन मंदिर में बैठा लो और भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ हम लोग को सीखने को है आज, इसको मैं कवर अप कर दूंगा, द बेसिक थिंग्स। इस पे न्यूमेरिकल्स वी कैन डू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का भी है, एक्चुअली सर्कुलर मोशन है ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल के आई कैन नॉट डिमाइस द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर टॉपिक्स, बट यस दिस इज अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज हम लोग लगातार काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, लीनियर मोशन पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, अचानक से दुनिया गोल गोल घूमने लगता है, एंड व्हेन इट चेंजेस, ऑफ कोर्स चेंज ऑलवेज कम्स विद सर्टेन सॉर्ट ऑफ अपोजिशंस, चेंज हमेशा अपोजिशन के साथ ही आता है, तो क्योंकि लीनियर से सर्कुलर में आने से आवर ब्रेन सेज ओह व्हाट द हेल व्हाई आर यू रोटेटिंग मी, नो, तो ये होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग यूज्ड टू इट, आप फटाफट इसमें अपने आप को कन्वर्ट एडजस्ट कर लोगे, है ना। चलो पहली बात तो अल्फा आई कैन से इज व्हाट, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अच्छा मैंने लिख रखा था ना, ओके चलो कोई नहीं, दो बार लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई इंडाइजेशन नहीं होगा। अब मेरी बात समझो, अपने को लाइक व्हाट वी हैड इन द लीनियर मोशन में क्या था, इक्वेशंस ऑफ मोशन था, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, लाइक दैट वी शुड आल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस of the circular motion, अपने को भी पता होना चाहिए, क्योंकि lot of many times you're gonna get the questions based on that, and there you're gonna need all this stuff, है ना। तो मैं फटाफट within 2 minutes मैं इस चीज को आपके सामने रखता हूं, ठीक है, आप ध्यान से इसको देखो। Let's suppose the body is moving in a circular path,
Initially at time t is equals to 0, the body is here, let the radius be r and the O is the center of the circle. मान लो किसी टाइम पे वो टिक 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 at t is equals to at time t the body is here. यहाँ पे बॉडी आ रखा है, इस मीन्स इसके पास कुछ अपना वेलोसिटी होगा ऐसे v, और इस पॉइंट पे हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूसीएम का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप ऐसे मान लो. बट लेट अस सपोज कि इस केस में ना हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? वी विल बी हैविंग some tangential acceleration which is not going to be zero. वो zero नहीं होगा. So now why am I doing that? Because I know that if we have some acceleration in this direction, alpha अगर tangential, तो alpha क्या लिखेंगे? Alpha tangential, omega upon t, इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं. ठीक है जी. Now if I have some acceleration in this direction, तभी तो velocity increase करेगा, right? और अगर velocity increase नहीं करता, then that all the time is going to be v is equals to r omega. बट हम लोग कब पढ़ते हैं v is equals to u plus at when we have the acceleration. याद करो लीनियर मोशन में ऐसे तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इधर स्पीड इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम. तो अपने को इसमें एक्सेलरेशन होता नहीं है. सो वी यूज दिस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली व्हेन वी हैव द एक्सेलरेशन, दैट इज v is equals to u plus at or v is equals to u minus at based on the nature of the accelerations and the velocity direction. तो इस केस में भी हम लोग इसको यूज करेंगे for the non uniform circular motion only. If I do not have any sort of acceleration in the tangential direction, then why the hell do we need that? All the time the velocity is going to be, speed is going to be constant, which is omega t. कुछ भी changes तो होगा नहीं, omega into r, sorry, my bad, है ना. So until we have the acceleration, there is no point of studying those equations of motion in circular parameters, circular form. तो linear acceleration, sorry, यहाँ पे tangential acceleration आपको होना चाहिए, तभी हमारा काम होगा. तो let's suppose कि इसको मान लो आप कुछ भी v naught मान लो, और this is the velocity at that particular point of time, और in this particular time if it has covered certain distance, उसको हम लोग ले सकते हैं ओमेगा इंटू टी, मान सकते हैं ना, ओमेगा इंटू टी मान सकते हैं. ऑल गुड. या फिर ऐसे कर लो ना, ओमेगा इंटू कैसे लिखेंगे, सॉरी, इसको मान लो कि इस पॉइंट पे दिस वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, और इस पॉइंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट एंड ओमेगा. बिकॉज वी हैव एक्सेलरेशन, तो वी कैन नॉट से ओमेगा टी, क्योंकि दैट इज फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बच्चों मैं फिर से स्लोली बोल देता हूं, इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है, देन दैट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस केस में अपने को इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखने का जरूरत नहीं है इन द सर्कुलर पैरामीटर्स. वी नीड टू राइट दिस, बिकॉज़ उस केस में क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हमेशा होगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा r ओमेगा ही होकर रखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी चेंजेस तो होंगे नहीं. सो वी नीड टू टॉक समथिंग अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आल्सो. अगर सर नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या करेंगे, यूनिफॉर्म में तो हमने देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म में क्या करेंगे वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं. ये बेसिक बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए. तो लेट अस सपोज कि इनिशियली टाइम t is equals to 0, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है which is omega naught. At any time t its angular velocity is omega. तो बच्चों ये तो कुछ d थीटा हो गया, कुछ तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रखा है ना, अपने को वही सब रिलेशन को फाइंड आउट करना है. पहला चीज देख लो अपने को, एक्सक्यूज मी, वी जस्ट हैव टू फिगर आउट दोज रिलेशन, है ना. आज थोड़ा मेरा गला भारी है तो साउंड माइट बी नॉट गोइंग दैट कांस्टेंट ना. ठीक है. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में भी दो केसेस आएंगे. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में भी दो केसेस आएंगे. एक तो हो जाएगा अल्फा जो है दैट इज अ कांस्टेंट, और दूसरा केस होता है अल्फा वेरिएबल. ठीक है, हम लोग मान लें कि लाइक इन द लीनियर मोशन आल्सो आई एम ट्राइंग टू रिलेट विद द लीनियर मोशन, क्योंकि आपका उस पर पकड़ ज्यादा स्ट्रांग है. हमने वहां भी देखा था दो केसेस, अल्फा कांस्टेंट और अल्फा वेरिएबल, है ना. तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट अल्फा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं. अगर अल्फा कांस्टेंट है बच्चों, सॉरी, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, इसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अगर हमारा जो अल्फा है वो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी is equals to d omega, इंटीग्रेट कर दो. टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम वेयर, 0 to t, 0 to t. ओमेगा विल चेंज फ्रॉम वेयर टू वेयर, ओमेगा नॉट टू ओमेगा. हमने ऑलरेडी इसको यहाँ पे लिख रखा है. तो बच्चों इतना हो गया. तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी शुड बी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. तो आप लिख सकते हो omega, that is velocity at any time t, should be given as
ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, विच इज वेरी मच रिजेम्बलेंस ऑफ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपको बिल्कुल वही दिख रहा होगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना जी, कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, चलो हम लोग फटाफट थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक काम करो, अच्छा एक काम और लिख सकते हैं इसको, एट एनी टाइम टी कर दो इसमें ना, ओमेगा टी कर, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है कि किसी भी टाइम पे टी पे, किसी भी टाइम टी पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एनीवेज अभी हम लोग ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, तो इसको लिख दो डी थीटा अपॉन डी टी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, हमारा क्या हो गया, ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट को भी हम लोग लिख सकते हैं ना आराम से, ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को थीटा चाहिए ना, तो ओमेगा नॉट को ऐसे ही रहने दो और हो जाएगा अल्फा टी। टेक दिस टी दैट हैंड साइड, so we should be having what, d theta is equals to omega naught plus alpha t times dt. Put the integration at time t is equals to 0, there was no angular displacement, तो वो 0 हो गया बच्चों। at time t we have some angular displacement theta, मान लो इसको थीटा ही मान लो, चलो हटा दो, चलो भाई थीटा हो जाओ, है ना, थीटा मान लो। टाइम का लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to t, तो वैल्यू पुट कर दो फटाफट, थीटा इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। जीरो लिमिट पुट करोगे तो -0, देयर इज नो नीड टू राइट ऑल द टाइम। आप इसको हो गया, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, आपको हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, कोई दिक्कत है ना। चलो थर्ड में आते हैं, ऐसे बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लीग ऑफ दिस, बट अभी हम इसको करने का कोशिश कर लेते हैं। अच्छा आपको याद है, डू यू गाइस रिमेंबर, अगर आपको याद होगा एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे हम लोग, v dv by ds, कुछ याद है ना, v dv by ds। तो लाइकवाइज वी कैन ऑल्सो राइट अल्फा को भी हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट अल्फा आल्सो, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ v वी हैव ओमेगा डी थीटा, सॉरी डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, करेक्ट है ना जी, कोई दिक्कत, हम लोग इसको इजीली आराम से ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आप बिलीव कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर इसमें डाउट है तो एक काम करो, आप एक बार या तो यू कैन रिवाइज बैक, आप पहले जो हम लोग पढ़े थे उसको रिवाइज कर लो, या फिर ऐसे समझो कि अल्फा इज व्हाट, डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं ना, उस तरह से उसको करके आप कर सकते हो, और ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा काम उससे भी हो ही जाएगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं देखो भैया ऐसे हो गया, इधर कर देते हैं ना, आई वांट दैट स्पेस, अल्फा इज व्हाट, डी ओमेगा अपॉन डी टी, अल्फा कुड बी रिटन एज व्हाट, डी ओमेगा, और ऊपर नीचे थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, डी थीटा अपॉन डी थीटा, तो एक तो ऐसे रख लो आप, है ना, आप डी थीटा यहाँ रख लो, ठीक है, और इसको लिख सकते हो, सही है ना जी, हाँ, तो एक हो गया डी थीटा अपॉन डी टी, है ना, इसको मैं यहाँ कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको तो ऐसे रहने दो, ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन देयर, और कि मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करा, भरोसा रखो, है ना, ठीक है। तो एनीवेज कम हियर विल बी हैविंग व्हाट, अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा डी ओमेगा, इंटीग्रेट कर दो, हियर अल्फा इज कांस्टेंट, हमने उसके बात की थी कि अल्फा हैज टू बी कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट है तो ओनली वेरिएबल इज थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 to थीटा कर दो, ओमेगा का वैल्यू कितना था, ओमेगा नॉट टू ओमेगा कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, अच्छा टी कर दो भैया, सही, ये लो, हैप्पी, ओके ग्रेट, दिस इज गोना बी हाउ मच, अल्फा थीटा, आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, आप लिमिट पुट कर सकते हो, टाइम क्यों वेस्ट करना, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 हो गया जी, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली करता हूँ, ओमेगा नॉट और ऐसे अपॉन 2, है ना, लिमिट पुट करने के बाद आपको यही मिलने वाला है, इसको इस तरफ लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर टी शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा, देखो बिल्कुल भी सेम ही है ना, हमारा जो था वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, सेम टू सेम दैट व्हाट वी हैव ओवर हियर। तो आप बच्चों क्या करोगे, अब तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लोगे, क्योंकि आपके काम में आने वाला है नेक्स्ट वीडियो लेसन में, इफ आई एम गोना डू द न्यूमेरिकल्स, मैं इसमें फटाफट न्यूमेरिकल्स कुछ करवा दूंगा आपको, ताकि आपके अंदर एक मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट मैं आपके लिए एक ही प्लेस में ये तीनों लिख देता हूं, आप याद रखना, दिस इज फॉर द केस व्हेन वी हैव द एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हो, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अल्फा बीइंग कांस्टेंट, वेरिएबल का बात हम लोग बाद में करेंगे।
So this all result what I've written on the screen is for the non-uniform circular motion. ये UCM के लिए नहीं है, correct? UCM में तो simple है, omega will not change, be it at any time, omega तो constant रहेगा. That simply could be written as what? Constant all the time. But इस केस में everything would gonna change. Theta भी यहाँ पे जो variables rate of change of theta होगा, that also will be different compared to the UCM. And now also in the non-uniform circular motion we can have two conditions. Alpha could be just a constant or it could be a variable. Variable की चर्चा हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं. We only talk about the constant acceleration. Or constant acceleration, these are the three equations that we have got which relates the circular parameter. वो आपको पता होना चाहिए. स्कूल में कभी पूछ देगा, जेईई में डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए. ना ही नीट में डेरिवेशन पूछता है, you all know that. बट आपको अच्छे से पता होना चाहिए. इसमें न्यूमेरिकल्स आ गए हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, आपने उसको इजिली उड़ा देना है ना. नीट में आएगा, इस पे डायरेक्टली उसमें नहीं पूछेगा जाएंगे आपको. इतने में हम लोग लकी नहीं हो पाते. तो फटाफट इसको लिख देता हूं मैं वन मोर टाइम, सारे इक्वेशन एक जगह. सो इसका हेडिंग डालो, इक्वेशन फॉर द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इक्वेशंस फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम with alpha as constant, alpha as constant. इसके सारे इक्वेशंस हैं बच्चों हमारे पास, है ना. तो पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था ओमेगा एट एनी टाइम t should be given as omega naught plus alpha t. Second equation that we had is theta was given as omega naught t plus half alpha t square. और जो हमारा थर्ड इक्वेशन था that was omega square t is equals to omega square naught plus 2 alpha theta. ये आपको 3 equations of motion आपको in the circular format आपको आने चाहिए. I'm going to do the numericals based on these 3 in the next video lesson. तो आज के लिए what I've taught you, मैंने आपको बताया कि correct way of writing क्या है. ds is equals to d theta cross r. That's the correct way of writing. हमने बताया कि आपको relation क्या होता है. And also we have talked about the uniform circular motion. That's only possible when we have the tangential acceleration to be 0. That is the case when we have the uniform circular motion. So yeah, that's all for the day, guys. I'm going to wrap up the video now. I'm going to see you in the next video lesson. But if you like the way I teach, please do like, share, and subscribe. Also hit the notification bell icon for you can get the update on the latest video which I upload on the channel. ठीक है? इसी के साथ आपसे मिलते हैं next video में. Till then, keep learning and keep studying. Take care. Bye everyone. Thank you so much.